Hey lovely people out there, welcome to my YouTube channel and thanks for clicking on this video. In our previous video lecture, we started with a very important series of lecture and the name of that particular series of lecture is antihypertensive drugs. Now before moving on to the main concept of our hypertension, we must understand the basic important terminologies which are related with our blood pressure. So in our previous video lecture, we understood some of the important factors which are affecting our systolic blood pressure and our diastolic blood pressure. Then in our previous video lecture, we also talked about some very important basic cardiac terminologies, that is the cardiac output. What do we understand by the concept of stroke volume? What is a preload and what is afterload? Now in this today's video lecture, we are going to understand कि ये जो systolic blood pressure होता है, in our previous video lecture we talked about कि ये जो cardiac output होता है, that is determining our systolic blood pressure. Now in today's video lecture, we are going to mainly focus on what are all important factors which are affecting our cardiac output. And अगर आपको पिछले video lecture से याद होगा, we saw there was an important formula of cardiac output. That formula was stroke volume multiplied by heart rate. So ये जो stroke volume होता है, what are all important factors which are affecting our stroke volume? ये आज के इस video lecture में हम देखने वाले हैं. So let us see what all things we are going to understand in this particular video presentation. So in our today's video lecture, we are going to understand the flow chart of the factors which are affecting our blood pressure. Second one is how the cardiac output determines our systolic blood pressure. And finally, we are going to talk about in detail about all those factors which are affecting our stroke volume. So let us start with the very first concept, that is the flow chart of the factors which is affecting our blood pressure. So in our previous video lecture, we saw कि ये जो blood pressure होता है, so we have two important types of blood pressure. The very first one is known as systolic blood pressure and the second one is known as diastolic blood pressure. Now let us just revise what do we understand by the term systolic blood pressure and what do we understand by the term that is known as diastolic blood pressure. So ये जो systolic blood pressure होता है, it simply means whenever our ventricles are contracting, जब ventricles contract करते हैं, तब जो हमारे major systemic artery में जो maximum pressure record होता है, when our ventricles are undergoing a contraction, that type of blood pressure is known as systolic blood pressure. Now second term, that is known as diastolic blood pressure. अब ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं, ये हर समय तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे. आफ्टर द फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इट विल अंडरगो अ फेज ऑफ रिलैक्सेशन एंड जब ये वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं तो मिनिमम प्रेशर दैट इज प्रेजेंट इन अवर मेजर सिस्टमिक आर्टरी दैट इज बेसिकली नोन एज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. नाउ इन अवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी सॉ कि ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है that mainly depends upon cardiac output and ये जो diastolic blood pressure होता है that mainly depends upon the total peripheral resistance. Now आज के इस video lecture में we are mainly focusing on only our systolic blood pressure. Now as I told you कि ये जो systolic blood pressure होता है that depends upon cardiac output. Now ये cardiac output basically क्या होता है? So cardiac output is nothing but in 1 minute कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड हमारा वेंट्रिकल्स पंप बेसिकली कर रहा है, दैट इज बेसिकली नोन एज अ कार्डियक आउटपुट. नाउ ये जो कार्डियक आउटपुट होता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला इज हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम. नाउ ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द टर्म स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है जब एक बार हमारा वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, इन दैट वन कॉन्ट्रैक्शन कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स से बाहर जा रहा है, दैट इज बेसिकली नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम.
एंड हार्ट रेट क्या होता है, 1 मिनट में हमारा हार्ट कितने टाइम्स बीट बेसिकली करता है, दैट इज नोन एज अवर हार्ट रेट. So let us see what are all important factors which are affecting our stroke volume. So as you can see on your screen, here is our stroke volume. Now stroke volume को 3 important factors affect करते हैं. The very first one is known as a contractility, the second one is known as a preload, and the third one is known as afterload. So let us move on to our very first important factor that is affecting our stroke volume, and that is our contractility. Now what do we understand by the concept of contractility? Now contractility का मतलब होता है simply जब हमारा ventricles contract basically करता है, that is nothing but that is known as a contractility. Now let us see कि जब contractility हम बढ़ाते हैं, what will be the effect on stroke volume, and stroke volume का अगर effect जानना है then definitely अगर stroke volume पे कुछ effect पड़ता है तो cardiac output पे भी effect पड़ेगा, and अगर cardiac output पे effect पड़ता है so definitely it will affect our systolic blood pressure. So let us see कि जब हम heart की contractility को बढ़ाते हैं what will be the effect on stroke volume. So as you can see on your screen कि अगर हमने लेट सपोज कि ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं, लेट से कि हमने वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको बढ़ा दिया. Now if we increase the contractility or the contraction of our ventricle, definitely जो stroke volume होगा वो बढ़ जाएगा. Now ऐसा क्यों होता है? Why when we increase the contractility there will be increase in the stroke volume? Let us understand with the help of this particular bottle example. Now let's suppose कि ये जो bottle है that is representing our left ventricle. Now अगर मैंने ये bottle को अगर मैं press करता हूँ so can I say I am increasing the pressure inside this bottle? अगर ये bottle को मैंने contract कर दिया यानी कि इस bottle को अगर मैंने बहुत forcefully squeeze किया है so यहाँ पे जो bottle में जो water है definitely with the pressure अगर मैं बहुत ज़्यादा उसको squeeze करता हूँ तो डेफिनेटली जो पानी या बॉटल से बाहर जाएगा वो ज्यादा होगा. एंड हमने ये बोला था कि ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है व्हेन दैट लेफ्ट वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली या फिर बहुत फोर्सफुली जब वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली करेगा तब जो अमाउंट ऑफ फोर्स होगा वो भी ज्यादा होगा. एंड अगर अमाउंट ऑफ प्रेशर या फिर फोर्स लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ज्यादा होगा सो डेफिनेटली जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड प्रेजेंट होगा वो भी ज्यादा इजेक्ट आउट होगा. एंड अगर एक पर्टिकुलर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्ट आउट हो रहा है दैट इज नोन एज अ स्ट्रोक वॉल्यूम. सो अगर हमने वेंट्रिकुलर के कॉन्ट्रैक्टिलिटी को अगर इंक्रीज कर दिया है डेफिनेटली जो ब्लड वहां से जाएगा वो फोर्सफुली जाएगा and the volume of a blood that will get pumped out of our left ventricle वो भी ज्यादा होगा. So can I say कि जो stroke volume होगा वो बढ़ जाएगा. अगर stroke volume बढ़ा है so we know a very important formula. And what is that formula? That formula is कि जो cardiac output होता है that is equal to stroke volume multiplied by our heart rate. So पहला पॉइंट अगर हमने कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाया डेफिनेटली जो ब्लड वहां से पंप होगा वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन वन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन वो बढ़ जाएगा. दैट मीन्स जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा. नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. अगर ये स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ता है सो कैन आई से कि ये जो कार्डियक आउटपुट है वो भी बढ़ जाएगा. सो यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा उसके वजह से क्या हुआ कि जो कार्डियक आउटपुट है वो भी बढ़ गया. एंड वी नो कि ये जो कार्डियक आउटपुट होता है दैट इज मेनली डिटरमाइनिंग आवर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. सो वंस अगेन अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी हमने अगर बढ़ाई उसके वजह से जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा. स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा कि जो कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ जाएगा. एंड अगर कार्डियक आउटपुट अगर बढ़ जाता है तो डेफिनेटली जो पर्सन का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा. नाउ इसका अपोजिट केस लेके देखते हैं. नाउ अगर मैंने लेफ्ट वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है
अगर उसको कम कर दिया तो क्या होगा? अगर हमने लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को अगर कम कर दिया, सो डेफिनेटली नाउ रिलेटिवली कम फोर्स लगेगा। अगर कम फोर्स लगेगा, सो कैन आई से कि रिलेटिवली कम वॉल्यूम ऑफ ब्लड हमारे वेंट्रिकल से बाहर जाएगा। तो उसके वजह से क्या होगा? अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होती है, तो उसके वजह से जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो भी कम हो जाएगा। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम अगर कम होता है, सो डेफिनेटली हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय आवर हार्ट रेट। सो अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी अगर डिक्रीज होती है, उसकी वजह से जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज होगा। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम अगर डिक्रीज होता है, सो डेफिनेटली जो कार्डियक आउटपुट होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा। एंड अगर कार्डियक आउटपुट अगर डिक्रीज होता है, सो जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। सो इस पूरे के पूरे डिस्कशन में यू नीड टू अंडरस्टैंड ओनली वन इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हमने कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाया, उसके वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, उसके वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा एंड उसके वजह से जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। नाउ इसका अपोजिट केस में क्या किया था कि ये जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको हमने डिक्रीज कर दिया, उसकी वजह से जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया, उसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो गया। एंड कार्डियक आउटपुट अगर डिक्रीज हो जाता है तो जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। So that was about our first important factor that is affecting our stroke volume, and that is known as a contractility. Now moving on to our second important factor, and that is known as a preload. But before moving on to our concept of a preload, there is a very important law, and the name of that particular law is Frank-Starling law. So let us first read कि ये Frank-Starling law होता basically क्या है। So Frank-Starling law, it states that जो stroke volume of the ventricles होता है that will increase as the ventricular volume increases due to the myocyte stretch causing a more forceful systolic contraction. Now this is the definition, but ये definition को समझने के लिए I will give you a example of a rubber band. Now let us assume कि ये जो मेरे हाथ में rubber band है that is representing our cardiac muscle. Now according to the Frank-Starling law क्या बोलते हैं कि अगर हमारे ventricles में we are mainly talking about the left ventricle, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड अगर प्रेजेंट है, सो डेफिनेटली इफ मोर वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन अवर लेफ्ट वेंट्रिकल, सो वो क्या करेगा, ज्यादा हमारे मायोसाइट या फिर कार्डियक मसल को ज्यादा स्ट्रेच करेगा। सो लेट अस से कि दिस रबर बैंड इज रिप्रेजेंटिंग अवर कार्डियक मसल, एंड अगर मैं जितना इसको स्ट्रेच करता हूं, आफ्टर व्हेन आई लीव दिस टू एंड, ये और ज्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेम थिंग इज हैपनिंग विथ अवर ह्यूमन हार्ट। अगर वॉल्यूम ऑफ ब्लड बेसिकली अगर ज्यादा है, सो क्या होगा, वहां पे जो मायोकार्डियल जो स्ट्रेच होता है ये रबर बैंड की तरह वो भी बढ़ जाएगा। एंड व्हेन दिस स्ट्रेच इज इंक्रीज, जितना ज्यादा आप स्ट्रेच करोगे उतना फोर्सफुली वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड जितना फोर्सफुली वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कैन आई से कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा। सो मोर दिस स्ट्रेच, more forcefully our left ventricle will contract, and जितना फोर्सफुली हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ही ज्यादा हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। बट ये जो स्ट्रेच होता है दैट इज विद इन अ लिमिट, दैट इज द फिजियोलॉजिकल लिमिट। ऐसा नहीं है कि आप हार्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करो और वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि रबर बैंड की भी अपनी एक लिमिट होती है। सेम इज द केस विथ अवर कार्डियक मसल। So let us define the Frank-Starling law once again. So it states that the stroke volume of the ventricles will increase as the ventricular volume increases due to the myocyte stretch causing a more forceful systolic contraction. Now इसका जो effect होता है that is seen in our second important factor, and that is known as a preload. Now हमने पिछले वीडियो लेक्चर में प्रीलोड को डिफाइन किया था। सो लेट अस सी कि ये प्रीलोड बेसिकली होता क्या है। सो प्रीलोड इज नथिंग बट जस्ट बिफोर द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है
दैट इज नोन एज प्रीलोड. नाउ लेट अस सी कि ये प्रीलोड कैसे हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर करता है. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि अगर हमने प्रीलोड बेसिकली बढ़ा दिया, सो कैन आई से कि हार्ट को ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड पे काम करना पड़ेगा. सो इफ आई इंक्रीज द प्रीलोड, दैट मीन्स कैन आई से कि वॉल्यूम इन द लेफ्ट वेंट्रिकल विल इंक्रीज. अगर वॉल्यूम इन द लेफ्ट वेंट्रिकल अगर बढ़ जाता है, सो कैन आई से अकॉर्डिंग टू द फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, जो स्ट्रेच होगा ऑन द वॉल्स ऑफ द हार्ट वो भी बढ़ जाएगा. एंड अभी हमने डिस्कस किया था कि जो रबर बैंड का जो सिचुएशन था कि जितना आप रबर बैंड को स्ट्रेच करोगे उतना फोर्सफुली वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड दैट वाज आवर फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ. सो अगर हमने प्रीलोड को अगर बढ़ाते हैं, सो डेफिनेटली जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड होगा दैट इज प्रेजेंट इन अवर लेफ्ट वेंट्रिकल वो ज्यादा होगा. उसकी वजह से जो हार्ट के ऊपर जो मायोकार्डियल स्ट्रेच होगा वो भी ज्यादा होगा. नाउ लेट अस सी उसके वजह से क्या होगा. So as we know कि if there is increase in the preload, the volume of blood in the left ventricle will increase. अगर volume of blood in the left ventricle अगर ज्यादा है, it will produce a more stretch on the walls of our human heart. And जितना अगर आप हार्ट के मसल को स्ट्रेच करोगे उतना फोर्सफुली वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एंड जितना फोर्सफुली वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके बाहर जाएगा. सो डेफिनेटली कैन आई से दैट देयर विल बी इंक्रीज इन द स्ट्रोक वॉल्यूम. अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है, वंस अगेन कमिंग बैक टू आवर फॉर्मूला दैट इज कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय आवर हार्ट रेट. सो अगर यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है, सो डेफिनेटली ये जो कार्डियक आउटपुट होगा वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगा. एंड अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ता है तो जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो भी बढ़ जाएगा. ना इसका उल्टा केस लेते हैं. अगर हमने हार्ट पे जो प्रीलोड है उसको अगर हमने कम कर दिया, सो कैन आई से देयर विल बी डिक्रीज इन द वॉल्यूम इन आवर लेफ्ट वेंट्रिकल. एंड अगर इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द वॉल्यूम इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, कैन आई से कि जो रिलेटिव स्ट्रेच हो रहा था पहले उसके मुकाबले नाउ देयर विल बी डिक्रीज इन द स्ट्रेच ऑन द वॉल्स ऑफ आवर ह्यूमन हार्ट. अगर if there is a decrease in the stretch on the walls of our human heart, can I say कि जो contractility होगी वो भी कम होगी. अगर contractility यहाँ पे कम होती है तो जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड एक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में इजेक्ट आउट होगा वो भी कम हो जाएगा. दैट मीन्स जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा. एंड वंस अगेन कमिंग बैक टू आवर फॉर्मूला दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, ये जो कार्डियक आउटपुट होता है इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट. सो अगर यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम अगर कम होता है, सो डेफिनेटली कैन आई से कि ये जो कार्डियक आउटपुट है वो भी कम हो जाएगा. एंड अगर कार्डियक आउटपुट अगर कम होता है तो जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो भी कम हो जाएगा. नाउ ये जो प्रीलोड होता है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है. So that is a very important concept, and that is known as venomotor tone. Now let us understand this particular concept in detail. So as you can see on your screen, here is our blood circulation. Now यहाँ पे क्या होता है, this particular site is representing our venous site. Now अगर मैंने venous site पे ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है पूरा का पूरा ये जो veins है ब्लू कलर के, अगर इसको अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, सो लेट अस सी व्हाट विल हैपन. नाउ अगर मैंने यहाँ पे जो वेन्स प्रेजेंट होते हैं उसको मैंने अगर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, सो कैन आई से कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो भी यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट होगा वो ज्यादा ह्यूमन हार्ट पे जाएगा. अगर ज्यादा अगर ह्यूमन हार्ट पे जा रहा है, सी वीनो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, there will be increment in the venous return to the heart. यानी कि जब हम ये वेन्स को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि जो भी यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है वो पूरा का पूरा ज्यादातर ह्यूमन हार्ट में चला जाएगा. सो कैन आई से व्हेन वी परफॉर्म वीनो कंस्ट्रिक्शन देयर विल बी इंक्रीज इन द वीनस रिटर्न टू आवर ह्यूमन हार्ट. अगर वीनस रिटर्न अगर हार्ट पे ज्यादा हो रहा है,
सो कैन आई से कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्शन होने से जस्ट पहले जो लोड होता है जिसको हम प्रीलोड बोलते हैं वो बढ़ जाएगा. सो इफ अगर प्रीलोड अगर बढ़ जाता है सो डेफिनेटली जो मायोकार्डियल स्ट्रेच होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू अवर फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ. सो अगर मायोकार्डियल स्ट्रेच अगर बढ़ जाता है सो कैन आई से कि जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्ट आउट हो रहा है वो भी ज्यादा होगा, यानी कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. एंड अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा तो जो हमारा कार्डियक आउटपुट होता है वो इंक्रीज हो जाएगा. एंड वी नो कि जब भी कार्डियक आउटपुट बढ़ता है there will be increase in our systolic blood pressure. So this is a very important relationship. That is, whenever we are performing venoconstriction, there will be increment in the venous return to our human heart. उसके वजह से जो प्रीलोड होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. प्रीलोड इंक्रीज होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा. स्ट्रोक वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा so definitely there will be increase in our cardiac output. एंड अगर एक बार अगर कार्डियक आउटपुट अगर बढ़ जाता है सो डेफिनेटली देयर विल बी इंक्रीज इन आवर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. नाउ इसका उल्टा करके देखते हैं. नाउ इफ यू परफॉर्म वीनोडाइलेटेशन सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि अगर यहाँ पे जो वेन्स होते हैं उसको हम डायलेट अगर कर दे सो कैन आई से देयर विल बी मोर पुलिंग ऑफ ब्लड टुवर्ड्स द डाउन साइड, यानी कि हार्ट पे जो ब्लड जा रहा है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. क्यों कम होगा? बिकॉज हमने वेन्स को यहाँ पे डायलेट करके रखा है. सो इफ यू परफॉर्म वीनोडाइलेटेशन देयर विल बी रिडक्शन इन द वीनस रिटर्न टू अवर ह्यूमन हार्ट. उसके वजह से क्या होगा, जो प्रीलोड होता है वो कम हो जाएगा. अगर प्रीलोड अगर कम होता है सो डेफिनेटली जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज हो जाएगा. अगर स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होता है so there will be decrease in our cardiac output. and अगर cardiac output अगर कम होता है there will be decrease in our systolic blood pressure. so these are very important factors which are mainly affecting the preload. so अभी तक हमने दो important factors कर लिए हैं. the very first one is known as a contractility and the second one is known as a preload. एंड प्रीलोड के जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं दैट मेनली डिपेंड्स अपॉन वीनोकंस्ट्रिक्शन और वी कैन से वीनोडाइलेटेशन. नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड दैट पर्टिकुलर फैक्टर इज नोन एज आफ्टर लोड. सो इन आवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी अंडरस्टूड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज व्हाट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ आवर आफ्टर लोड. सो आफ्टर लोड का मतलब क्या होता है? द प्रेशर दैट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द ब्लड प्रेशर इन द एओर्टा और वी कैन से द प्रेशर दैट इज रिक्वायर्ड टू ओपन द एओर्टिक वेल्व. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि हियर इज आवर ह्यूमन हार्ट. नाउ ह्यूमन हार्ट में ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है when we say that लेफ्ट वेंट्रिकल जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है सो हमें ये पता है कि यहाँ पे एओर्टा में कुछ प्रेशर बेसिकली होगा. नाउ एओर्टा एंड ये जो वेंट्रिकल्स है लेफ्ट वेंट्रिकल इसके बीच में एक इंपॉर्टेंट वेल्व होती है एंड दैट पर्टिकुलर वेल्व इज नोन एज एओर्टिक वेल्व. नाउ ये एओर्टिक वेल्व जो होती है वो कब ओपन अप होगी? वो तब ओपन होगी whenever जैसे ही ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली करेगा सो प्रेशर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल विल स्टार्ट राइजिंग. नाउ एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जो प्रेशर है दैट विल बी मोर देन द प्रेशर इन द एओर्टा. जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर विल बी मोर देन द प्रेशर इन द एओर्टा ये जो वेल्व है वो खुल जाएगी एंड जो हमारा ब्लड है वो यहाँ पे एओर्टा में आ जाएगा. And this particular resistance is known as after load. So now think कि अगर after load अगर ज्यादा है so can I say कि लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा प्रेशर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा in order to overcome that particular resistance or we can say after load. If you are not understanding this, I will give you a very simple example. In our previous video lecture मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप बीच पे चलते हो
and if you want to maintain a speed of 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रोड पे मेंटेन करना ज्यादा इजी है कि बीच पे मेंटेन करना ज्यादा इजी है? सो द आंसर इज कि 5 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो रोड पे मेंटेन करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू बीच। बीच पे क्या होता है कि जो सैंड होती है दैट इज प्रोवाइडिंग अ रेजिस्टेंस। सो वहां पे बीच पे अगर आपको 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर मेंटेन करनी है सो डेफिनेटली आपको ज्यादा ताकत की जरूरत होगी। अगर ज्यादा ताकत की जरूरत होगी सो कैन आई से कि आपको ज्यादा फोर्स या फिर आपको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। सेम इज द केस विद अवर ह्यूमन हार्ट। अगर यहाँ पे जो एओर्टा का प्रेशर है वो अगर ज्यादा है, ये वेल्व कब खुलेगी? when this left ventricle will overcome the pressure of the aorta, तभी ये वेल्व बेसिकली खुलेगी। तो अगर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है और ये वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा इट विल नीड टू ओवरकम द प्रेशर ऑफ द एओर्टा, तब जाके ये वेल्व खुलेगी। सो डेफिनेटली अगर इसको एओर्टा में अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है सो डेफिनेटली दिस लेफ्ट वेंट्रिकल हैज टू कॉन्ट्रैक्ट वेरी फोर्सफुली एंड वहां पे जो प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर एओर्टा में प्रेशर अगर कम है यानी कि अगर आफ्टर लोड अगर कम है सो इजीली व्हेन आवर लेफ्ट वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट, एक पॉइंट ऐसा आएगा when the left ventricle का pressure will easily overcome the pressure in the aorta and उसके वजह से क्या होगा कि ये जो aortic valve है वो open up हो जाएगी and easily जो blood है वो हमारे major systemic artery में पहुंच जाएगा। So in this particular video lecture we understood that there are three important factors which are mainly affecting our stroke volume. The very first factor we discussed was about the contractility. The second factor we saw that was about the preload, and the third important factor we saw was the afterload. So ये तो सारे के सारे factors हो गए which are mainly affecting our systolic blood pressure. Now in our next video lecture we are going to see कि जो diastolic blood pressure होता है that is mainly dependent upon the total peripheral resistance. Now how this total peripheral resistance is affecting our diastolic blood pressure, we are going to see that particular concept in the next video presentation. So that's it for today's video lecture. I hope यहाँ तक आपने video lecture अगर देखा है so definitely आपको पसंद आया होगा। Please press that subscribe button, press that bell icon, like this video and share it with your friends. See you in the next video lecture. Till then, see ya, bye bye, have a good day.